Hello everyone, welcome to our chapter Ray Optics and Optical Instruments. It is one of the most important topic in class 12 physics. So this is our lecture number 1. So let's start the topic. So first is our introductory part regarding the chapter. This is our ray optics. And remember, in ray optics, what we will discuss? In ray optics, actually, we will discuss two things. One is our geometrical optics, another one is physical optics. So here we will discuss, first thing is geometrical optics. And remember, geometrical optics, it deals with light travels in straight path, or you may say rectilinear path. And in this topic we will discuss three things. One is our reflection, second one is our refraction, and third is our total internal reflection. So next part is physical optics. So here, remember, it deals with nature of light. Which nature? It deals with wave nature of light. It deals with wave nature of light. And here we will discuss interference. Second one is diffraction. And third one is polarization. So simply, you categorize optics into two groups. That is geometrical optics and physical optics. So in this case, first let's discuss about light. So what is light? Remember, in a very simple form, we can define it as it is form of radiant energy which is emitted by excited molecules or atoms, which gives sensation of ability to our eye to see an object. Next, some important term, that is your object. It is a very common term, object. What is object? Object is a source of light. Simply you may write, it is a source of light. It is a source of light which emits light in all possible directions. In all possible directions. That means it is source of light or it emanates light, जो भी लिखो, which passes through optical device like mirror, lens, prism, etc. This is your object, or you may write source. Next is types of object. What are the different types of object? That is, one is real object, second one is virtual object. So types. In this type, we will discuss regarding real object. Second one is virtual object.
So first is what is real object. See, let us think this is your optical device. Let us think this is your optical device. Yes. And this is one object. O is the object. So O से क्या emit होगा? Incident ray से start होगा. These are the incident rays. So towards with their direction, that means towards the optical device. So here O is termed as real object. Object means it is in contact with incident rays. So real object means true connection with incident rays. But virtual object में क्या होगा? फॉल्स कनेक्शन विथ इंसिडेंट रेज. कैसे? देखो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ. सपोज एक कन्वर्जेंट बीम ऐसे आ रहा है. देखो, दिस इज वन कन्वर्जेंट बीम. सो इसके रास्ते पे एक ऑप्टिकल डिवाइस हम लोग प्लेस कर देने से क्या होगा? सो आज पर रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट ऐसे लग रहा है जैसे कि दिस टू रेज दे विल मीट इच अदर एट दिस पॉइंट. यस, दैट मीन्स ये जो पॉइंट अभी मैं शो कर रहा हूँ ना, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट किसके साथ कनेक्शन पे है? इंसिडेंट रेज के साथ कनेक्शन पे है. लेकिन अभी कौन सा कनेक्शन? फॉल्स कनेक्शन. दैट मीन्स दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अभी समझ में आया? रियल ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट कम टू इमेज. ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया डिस्कशन. नेक्स्ट इज आवर इमेज. इसमें देखो, सो व्हाट इज इमेज? Simply write it is a geometrical figure. So you may write geometrical figure which is similar to figure object. Figure object means that is simply object which is similar to figure object from which incident rays are coming. And after reflection is produced. That is your image. And ये कितने वेराइटीज का है बोलो? इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर रियल इमेज, सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज. सो देखो, अभी रियल इमेज के बारे में डिस्कशन होगा. इमेज मीन्स इट इज इन रिलेशन विथ रिफ्लेक्टेड रेज. यस, सो वन इज योर रियल इमेज and second one is virtual image. So everything can be cleared by the help of ray diagram only. So again let's see, this is, suppose consider this is your optical device. ये तुम्हारा ऑप्टिकल डिवाइस. यस, अभी ऑप्टिकल डिवाइस के पास देखो ऐसे दो रेज आ रहे हैं. दीज आर टू इंसिडेंट रेज. यस, सो दे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ऑप्टिकल डिवाइस दे विल मीट इच अदर एट दिस पॉइंट. दैट मीन्स ये पॉइंट क्या होगा? ओ इज आवर वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ये पॉइंट किसके साथ कनेक्शन पे है? इंसिडेंट रेज के साथ कनेक्शन पे है. दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एंड ऑप्टिकल डिवाइस से रिफ्लेक्शन होने के बाद, सपोज आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट ईच अदर एट पॉइंट आई. सो हियर आई इज योर इमेज. ये कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज, क्योंकि दिस इमेज इज इन ट्रू कनेक्शन विथ रिफ्लेक्टेड रेज. नेक्स्ट सेकेंड फिगर को ऑब्जर्व करो. सेकेंड फिगर को देखो. सो सेकेंड फिगर में फिर से एक ऑप्टिकल डिवाइस कंसिडर करो. यस, दिस इज योर ऑप्टिकल डिवाइस.
नेक्स्ट यहाँ पे ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ओ ऑब्जेक्ट से ऐसे दो रे निकल रहा है, देखो, दैट मीन्स दीज आर द इंसिडेंट रेज। ये कौन सा ऑब्जेक्ट? दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट, दिस वन इज रियल ऑब्जेक्ट। एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रेज एंड ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे। सो दो रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे कि दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज दे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। यस, सो ये जो मिल रहा है ना पॉइंट आई, दिस इज योर इमेज। विच इमेज? रियल और वर्चुअल? दिस इज कम्प्लीटली वर्चुअल। फर्स्ट इज दिस इज इमेज, वाई? बिकॉज दिस पॉइंट इज इन कनेक्शन विथ रिफ्लेक्टेड रेज। ट्रू कनेक्शन और फॉल्स कनेक्शन? completely false connection, so this is virtual image. I hope this is clear. So real object, real image, virtual object, virtual image, everything is clear? Yes. So basically in case of ray optics, what we will discuss after this, your next chapter is your wave optics, but in ray optics what we will discuss? First, fix a brief idea about the subtopics. So we will study, what we will study? We will study in ray optics. Systematically, we will discuss all these things. So in order to get a brief idea, so you have to subscribe this channel, okay, and stay tuned for next update actually. So first thing, plane mirror, इसके बारे में डिस्कशन होगा, plane mirror. Second one is spherical mirror. And we all know it is of two types. One is your concave mirror, second one is convex mirror. Yes. Next, glass slab, then lens. Next है हमारा prism. Next, combination of lens, combination of lenses, then glass prism, mirrors, बस. So next starts from plane mirror. प्लेन मिरर से आज का टॉपिक शुरू होगा. यस, सो अटेंटिवली सब कुछ ऑब्जर्व करो, तभी जाकर समझ पाओगे टोटल लेक्चर. सो हियर इज आवर प्लेन मिरर. सो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन. प्लेन मिरर का मतलब मिरर हुज reflecting surface is plane, that is called plane mirror. And there are two laws in case of plane mirror, reflection will occur. So laws of reflection, laws of reflection. So reflection का एक बेहतरीन डायग्राम है actually, we all know this. This is your reflecting surface, surface on which reflection takes place, that is reflecting surface. Then this is suppose your incident ray, ray coming or approaching towards the mirror, incident ray. Then after reflection, ray moving away from the mirror, that is your reflected ray. And here is the point of incidence. So this is your I. O point is the point of incidence. O2R is your reflected ray. And O point पे नॉर्मल ड्रा करेंगे किसके साथ? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो ग्रीन कलर लाइन दिखाई दे रहा है तुमको, दैट इज अवर नॉर्मल. सो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, that is our angle of refraction, and this is our incident ray, and this one is your reflecting surface, reflecting surface. Yes, and remember the angle between incident ray and reflecting surface, ये जो angle दिखाई दे रहा है, this is your glance angle of incidence, and angle between reflected and reflecting surface, this is glance angle of reflection. Yes. So next we will discuss laws of reflection. So first law, so simply we know angle of incidence equal to angle of reflection.
फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. So that is angle I is equal to angle R. Let it be theta. So angle I angle R के सब इक्वल रहने से क्या होगा? अच्छा, जी आई प्लस जी आर, और एक चीज़ देखो, जी आई प्लस आई दैट इज 90 डिग्री एंड जी आर प्लस आर दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो वी कैन राइट जी आई प्लस आई is equals to angle glance angle of reflection plus angle of reflection. So angle I is equal to angle R equal to theta. So GI plus theta is equal to GR plus theta. So cancel हो जाने से we came to know GI is equal to GR. Glance angle of incidence equal to glance angle of reflection also. So next is what? Second law. Second law तो सबको पता है actually. Incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence to the reflecting surface all lie in the same plane. So same thing we have to write. Second law is incident ray, reflected ray and normal at point of incidence, normal at point of incidence to the reflecting surface all lie in same plane. Yes, this is your laws of reflection. So glance angle of incidence equal to glance angle of reflection, ये भी पता चल गया हमको बस. नेक्स्ट कम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म उसका क्या है, ये है हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट. देखो, सो नेक्स्ट विल डिस्कस law of reflection in vector form. सो इसके लिए हमको अच्छे से एक डायग्राम ड्रा करना है चाहिए. पहले एक परफेक्ट डायग्राम हमको ड्रा करना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा इसको समझने के लिए. देखो, दिस वन इज अवर नॉर्मल. यस, नॉर्मल को मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस वन इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. सभी ये है हमारा इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज अवर व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे. आरो मार्क हम लोग प्लेस करेंगे. दिस इज योर इंसिडेंट रे डायरेक्शन, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. यस, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे and this one is reflected ray. और एक चीज़ देखो, एंड नॉर्मल को हम लोग दे देंगे. देखो, दिस इज नॉर्मल, लेट इट इज एन कैप. व्हाट इज एन कैप? यूनिट वेक्टर फॉर नॉर्मल. अच्छा, पहले मेंशन करो, मेंशन करना चाहिए दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. एंगल आई को थीटा ले जाओ, एंगल आर भी थीटा. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सॉरी, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अल्फा लिख दो. ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेट इट बी बीटा. यस, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स एक्सिस पे है आई कैप. अच्छा, देन इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर फॉर इंसिडेंट रे, सो इसको ले जाओ ई आई कैप. ई आई कैप यूनिट वेक्टर फॉर इंसिडेंट रे लिखो. सो यूनिट वेक्टर फॉर इंसिडेंट रे, इसको ले जाएंगे हम लोग ई आई कैप. देन यूनिट वेक्टर फॉर रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या ले जाओगे? यूनिट वेक्टर फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, लेट अस कंसीडर इट एज ई आर कैप. यस, एक है तुम्हारा ई आई कैप, दूसरा चीज़ क्या है? ई आर कैप. मेंशन कर दो नेमिंग. सो इसमें ई आई कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर फॉर इंसिडेंट रे. Then E R cap, that is unit vector for reflected ray. And third thing is N cap, this is your unit vector for normal. Yes, so इसमें और एक चीज़ देखो, इसको कंपोनेंट में स्प्लिट करने से ई आई कैप को
क्या मिलेगा हमको, देखो एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंपोनेंट मिलेगा एंड एलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस एक कंपोनेंट मिलेगा। देखो सो जेड फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट देखो, सो इधर जेड फॉर्मेट दिखाई दे रहा है पास, ये एंगल अल्फा मीन्स ये एंगल भी अल्फा होगा। तो जेड फॉर्मेट का ट्रिक समझने के लिए ट्राई करो, दिस इज अल्फा। देन सो ये क्या हो जाएगा, एलोंग एक्स एक्सिस दिस विल बी, अच्छा यूनिट वेक्टर, यस। सो डोंट थिंक दैट इसको ई आई कैप क्या लिखना चाहिए कॉस अल्फा, सो नो, ई आई कैप को हम लोग क्या माने यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1। सो सिंपली जितना सारा हम लोग मेंशन किए ना, ई आई कैप, ई जे, ई आर कैप एंड एन कैप, ये सब यूनिट वेक्टर, दैट मीन उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। सो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या होगा 1 कॉस अल्फा, और सिंपली मेंशन कॉस अल्फा, देन दिस विल बी कॉस अल्फा। कैसे, यस हो पाएगा। अच्छा कॉस अल्फा ना लेकर ऐसे भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, देखो यस वही जेड फॉर्मेट में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लिखना चाहिए। देखो दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स मेरे ट्रिक के हिसाब से जेड फॉर्मेट अभी दिखाई दे रहा है, देखो यस। सो दिस एंगल अल्फा मीन्स ये एंगल भी अल्फा होगा, वेरी गुड, अल्फा नहीं तो थीटा, थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, ओके। सो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल अटैचिंग कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, सो दिस विल बी 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, परफेक्ट। सो एज पर द वेक्टर फॉर्म, ओके। सो कैसे लिखना चाहिए अभी ई आई कैप को, सो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट ई आई कैप इज इक्वल टू, अच्छे से देखो साइन थीटा, ये किसका डायरेक्शन पे है, आई कैप के डायरेक्शन पे है, साइन थीटा इज अलोंग आई कैप डायरेक्शन। अच्छा कॉस थीटा ये किसका डायरेक्शन पे है, ऑपोजिट टू एन कैप, सो इसको लिखना है हमको कॉस थीटा इंटू माइनस एन कैप, यस। सो सिंपली राइट कॉस थीटा इंटू माइनस एन कैप प्लस साइन थीटा आई कैप, वेरी गुड। सो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, यस थीटा फॉर्म में रिफ्लेक्ट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसी हिसाब से इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा ई आर कैप कितना होगा, ई आर कैप, फिर से वही बात हम लोग इसको कंपोनेंट पे स्प्लिट करना चाहिए हमको, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। सो इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको, देखो इसमें दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, अभी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ये क्या होगा दिस एंगल ऑल्सो थीटा, हो गया थीटा फाइंड आउट हो गया, दिस इज थीटा। सो एंगल अटैचिंग कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, सो दिस विल बिकम ई आर कैप मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर ना, सो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, सो सिंपली हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, सिंपली वी हैव टू मेंशन कॉस थीटा, एंड ये होगा हमारा क्या साइन थीटा, यस। अभी ई आर कैप क्या होगा, एक हमारा साइन थीटा, देखो ठीक से साइन थीटा, उसका डायरेक्शन किसके साथ मैच कर रहा है आई कैप, सो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा, फिर से देखो कॉस थीटा एन कैप का डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है, कॉस थीटा एन कैप। सो इतना करने के बाद सिंपली यू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करो, तो ई आर कैप माइनस ई आई कैप कितना होगा, ई आर कैप का वैल्यू लिखो साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, देन ई आई कैप माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा एन कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आई कैप कैंसिल हो गया, देखो तो कितना बचा प्लस
2 cos theta n cap. Very good. So this is 2 cos theta n cap. This is your E r cap माइनस ई आई कैप का रिजल्ट. अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुको. तो इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है हमको. तो पेशेंस आई ऑप्टिक्स समझने के लिए फुल ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड. सो ई आई कैप डॉट एन कैप, डॉट प्रोडक्ट पता है. ए डॉट बी का आंसर क्या होगा. फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. सो इसमें ई आई कैप डॉट एन कैप क्या होगा. ई आई कैप मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई आई कैप एंड एन कैप. ओके. सो पिक्चर को देखो ठीक से. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई आई कैप. एक्चुअली देखो, दिस इज योर ई आई कैप. यस, रुको, ये है हमारा ई आई कैप एंड दिस वन इज एन कैप. सो दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा. तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट हम लोग करने के लिए फर्स्ट दे मस्ट connected with each other in tail to tail. So when two vectors are joined in terms of tail to tail, then smaller angle between them, that will be the angle between two vectors. So smaller angle क्या है. इसके बीच में दो एंगल है. देखो, ये वाला एक एंगल, दूसरा ये वाला एक एंगल. तो स्मॉलर क्या होगा, जो ग्रीन कलर पे अभी शो कर रहा हूँ मैं. दिस वन इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. बस. सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देखो. So we have to calculate a value. रुको, this is the angle between E I cap and N cap. ये टोटल एंगल कितना बोलो. दिस टोटल इज पाई. दिस टोटल इज पाई. सो पाई से थीटा माइनस करने से वो एंगल मिल जाएगा, एंगल बिटवीन ई आई कैप एंड एन कैप. सो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा. सो सिंपली वी हैव टू राइट पाई माइनस थीटा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो कॉस पाई, सॉरी, cos pi minus theta. So E I cap का मैग्नीट्यूड 1, N cap का मैग्नीट्यूड 1, cos pi minus theta that is minus cos theta. Yes, that means E I cap dot N cap ये क्या मिला हमको, that is minus cos theta, minus cos theta. Yes, and इसमें देखो ये जो इक्वेशन अभी दिखाई दे रहा है देखो बॉक्स पे, ये इक्वेशन. सो ये इक्वेशन क्या है, ई आर कैप माइनस ई आई कैप इक्वल टू 2 कॉस थीटा एन कैप. बस. सो ये जो हमको मिल रहा है ना, इसमें कॉस थीटा का आंसर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ई आई कैप डॉट एन कैप. बस वही इक्वेशन को ग्रीन कलर इक्वेशन पे पुट कर दो. कॉस थीटा वैल्यू यूज करने के बाद फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा. द फाइनल आंसर विल बी ई आर कैप माइनस ई आई कैप that is equal to 2 into cos theta का वैल्यू माइनस ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप. ये होगा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ई आर कैप माइनस ई आई कैप इज इक्वल टू माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप. मुझे पता है ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है तुमको, लेकिन फिर भी यू हैव टू पे योर अटेंशन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. दो वेक्टर के बीच एंगल का फाइंड करोगे. When two vectors are joined tail to tail, the smaller angle between them, that will be the angle between two vector. Yes, this is the first year concept. Okay, class 11 concept. So हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म. यस, नेक्स्ट व्हाट वी विल डिस्कस, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. लेट्स राइट द टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. जो बच्चा ये टोटल लेक्चर को कंप्लीट करेगा ना, अभी ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया. सो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, तुम लोग नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा ज़रूरी है या नहीं. यस, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो. उसी हिसाब से जितना जल्दी मैं ट्राई करूँगा, जितना जल्दी पॉसिबल मैं अपलोड करूँगा. इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ it is not required, then I will not upload any video for any more. Okay, देखो, फिर भी all of you put your comment
and suggestion so that it will be helpful for me. So image formation by plane mirror, ये एक 7 क्लास का कॉन्सेप्ट. देखो ये एक प्लेन मिरर है. देखो दिस इज नॉट प्लेन मिरर एक्चुअली, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, जेमोट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर. यस ओके. देन अभी ये एक ऑब्जेक्ट है. देखो वो एक ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज ए सोर्स which emits light in all possible directions. So इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड. सो देखो एक ऐसे इंसिडेंट हो रहा है परपेंडिकुलर टू, और नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर के ऊपर. सो दिस इज इंसिडेंट रे. सो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने से क्या होगा? रिट्रेसेस इट्स पाथ. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. और एक इंसिडेंट रे मैं ले रहा हूँ, दिस इज इंसिडेंट रे, ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे. बस. देन बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद देखो मिलेगा हमको इमेज. हो गया. सो दिस इज द बिहाइंड द मिरर. मीन्स व्हाट? बिहाइंड द मिरर ईच एंड एवरीथिंग दे ऑल आर वर्चुअल. सो वर्चुअल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स योर इमेज. ये कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज. हो गया. ठीक से देखो. आई होप इट इज़ क्लियर. तो दिस इज योर वर्चुअल इमेज. एक बहुत आसान सा टॉपिक. दिस इज आवर वर्चुअल इमेज. एंड ये कौन सा ऑब्जेक्ट? दिस इज रियल ऑब्जेक्ट. सो मिरर, प्लेन मिरर के फ्रंट पे तुम लोग जो तुम्हारा फेस देख रहे हो ना, वो क्या है? तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका इमेज वर्चुअल इमेज, दैट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. यस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके. नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइट ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज बाय ए मैन. हाइट ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट इमेज बाय ए मैन itself. एक्चुअली टॉपिक क्या बोल रहा है पता चल रहा है तुमको? एक मिरर के सामने तुम सपोज खड़े हो. सो तुम्हारा खुद का इमेज, कंप्लीट फुल साइज इमेज देखने के लिए व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द मिरर. यस सपोज तुम्हारा हाइट क्या है? तुम्हारा हाइट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट, सपोज मिरर के फ्रंट में तुम खड़े हो, सपोज तुम्हारा हाइट क्या है? 6 फीट. सो मिरर का साइज कितना होगा? सो दैट यू कैन सी योर कंप्लीट इमेज. देखो ये एक प्लेन मिरर, ये उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके. सो यहाँ पे एक बंदा देखो खड़ा है. ये है उसका आई. ये क्या है? उसका आई. ये है उसका हेड. यस ये क्या है? उसका हेड. हेड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे समझो. ये है उसका हेड. एंड ये क्या है? दिस इज द फुट. दिस पर्सन इज द फुट ऑफ द पर्सन. ये क्या है? हेड ऑफ द पर्सन. अच्छा, वो उसका फुल साइज इमेज उसको दिखाई देगा. वो कब पॉसिबल है? देखो सो हेड से इंसिडेंट रे आकर देखो उसका आई में एंटर होगा. अभी वो पर्सन क्या बोल पाएगा? मुझे मेरा हेड दिखाई दे रहा है मिरर के पीछे. ओके. देन फुट से इंसिडेंट रहकर रिफ्लेक्स होने के बाद आई पे एंटर होना चाहिए, तो अभी जाकर वो बोल पाएगा मुझे मेरा फुट भी दिखाई दे रहा है. ऑब्वियस. ओके. सो लेट द हाइट ऑफ द पर्सन क्या है? हेड से लेकर फुट तक. तो हाइट ऑफ द पर्सन क्या है? कैपिटल एच. कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. अच्छा, सो हेड से लेकर देखो, हेड से इंसिडेंट रहकर आई पे एंटर हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो हेड टू फुट में से ज्वाइन कर रहा हूँ. यस. सो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल ड्रा करेंगे हम लोग. तो ये एंगल क्या होगा? थीटा. ये एंगल भी थीटा होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये पॉइंट का नाम दे दो. हेड का ए, दिस पॉइंट इज सपोज एम,
देन दिस इज योर ओ, आई को ओ मान लो, देन जो बॉटम पॉइंट, ओके, बॉटम एंड ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का नाम दे दो M1 M2। सो M2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रा करने से ये होगा नॉर्मल। सो फुट ऑफ द नॉर्मल लेट इट बी B एंड फुट का नाम दे दो C। सो A to C दैट हाइट इज कैपिटल H। ओके, सो ये मान लो O से लेकर I से लेकर फुट तक, I से लेकर फुट, ये हाइट कितना, लेट इट बी स्मॉल h। तो मुझे बोलो हेड टू आई, हेड टू आई ये कितना लेंथ होगा, दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये समझ में आया? ओके, सो पिक्चर में ये हमको पता चल रहा है दीज टू ट्रायंगल्स, ओके, एज पर सिमेट्री हम लोग बोल पाएंगे, देखो एज पर सिमेट्री AM एंड MO इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ MO एंड AM। ओके, देन पिक्चर से देखने से थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है ना, सो ये रे डायग्राम है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये दोनों ट्रायंगल, ये टू ट्रायंगल देखो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो इसको मान लो एंगल आई, ये तुम्हारा एंगल भी आई, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो मैं शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, दीज टू ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल, बस ये भी ट्रायंगल, तो सिमिलर होगा। नेक्स्ट इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, सो ये क्या होगा, O टू B इज इक्वल टू B टू C, कितना होगा, O से लेकर C तक स्मॉल h, सो O टू B ये होगा तुम्हारा h बाई 2 एंड B टू O दिस विल बी h बाई 2, B से लेकर C, सॉरी B से लेकर C, दिस इज योर h बाई 2। सो फ्रॉम फिगर ये हमको पता चल रहा है OB इज इक्वल टू BC, OB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू h बाई 2, और एक चीज़ AM इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2। एंड व्हाट इज M1 M2, M1 M2 का आंसर क्या होगा, देखो ये पिक्चर से ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है सबको, बस। सो M1 M2 का लेंथ किसके साथ बराबर है, MB के साथ बराबर है। यस, सो यू मे राइट M1 M2 इज इक्वल टू कितना, M1 M2 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, MO प्लस OB दैट इज MB का आंसर MO प्लस OB। तो मुझे बोलो MO का वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2, OB का वैल्यू h बाई 2, तो ये हो जाएगा कैपिटल H बाई 2 माइनस h बाई स्मॉल h बाई 2 प्लस स्मॉल h बाई 2, तो कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है हमको, कैपिटल H बाई 2, बस ये हमको मिल गया। व्हाट इज ए कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द पर्सन, कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ द पर्सन। सो नाउ वी केम टू नो टू सी द फुल साइज इमेज, to see the full size image of a person standing in front of a mirror, the size of the mirror must be half of the size of the person, okay, this is the answer। yes, so रे डायग्राम अपने आप ड्रा करो, उसके बाद नेमिंग दे दो, उसके बाद समझ पाओगे। yes, next come to the next part, that is your field of view, एक छोटा सा ऐसा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये सपोज तुम्हारा प्लेन मिरर एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ के ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रहा है, ये है उसका रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है उसका, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड और एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ पे ये होगा उसका रिफ्लेक्टेड रे, पक्का। तो ये है तुम्हारा, देखो ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, बस दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू।
दैट मीन्स हम लोग और भी ड्रा कर सकते हैं किसको, जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज, देखो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, देन इंसिडेंट, देखो रिफ्लेक्टेड, ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रेज समा हो जाएगा। क्लियर, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ व्यू रीजन। सो इसमें चोर दुकानदार के सामने से गुजर चुका है, बट उसका इमेज भी दिखाई देगा, इसका इमेज फिर भी दिखाई देगा। तो उसका एप्लीकेशन क्या है, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, चोर दुकानदार के सामने से गुजर चुका है, बट उसका इमेज फिर भी दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू की वजह से। यस, ओके, ये फील्ड ऑफ व्यू की वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सो टॉपिक इज एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर। ओके, सो सिंपल सा डायग्राम हमको ड्रा करना चाहिए। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ये हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस ग्रीन कलर लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल। यस, ओके, इंसिडेंट रे wants to travel in straight line path। सो इसको मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉटेड येलो कलर लाइन, दैट इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो नेमिंग दे दो, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड हियर इट इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। Yes, so remember this is your angle I, or angle I is equal to angle R, that is theta, suppose theta, this is theta, हो गया। So what is angle of deviation? Remember the angle between direction of incident ray, the angle between direction of incident ray and reflected ray, that is called angle of deviation। ये जो एंगल दिखाई दे रहा है अभी, इसका आंसर क्या होगा, एज पर द ज्योमेट्री अप्लाई करने के बाद आंसर मिल जाएगा हमको। सो लेट दिस एंगल इज ये, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। यस, सो ओरिजिनल डायरेक्शन से वो कितना एंगल भटक गया अपने रास्ते से, दैट्स आवर एंगल ऑफ डेविएशन डेल। सो ये टोटल एंगल कितना होगा, पाई और 180 डिग्री। सो एंगल थीटा प्लस डेल, इसका आंसर क्या है, पाई। सो डेल का आंसर क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। एंड और एक चीज़ याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इज टेकन एज पॉजिटिव। अभी जो डायग्राम पे दिखा रहा हूँ दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। So anti-clockwise deviation is taken as positive and clockwise deviation is taken as negative. Yes, so as per the definition, what we have to write, angle of deviation in case of plane mirror, so it is the angle between
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and reflected ray, direction of incident ray and reflected ray. yes so ये होगा हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्या है हमारा, इमेज इन प्लेन मिरर, उसका प्रॉपर्टीज। सो सिंपल प्रॉपर्टीज हमको डिस्कशन ना है बस। सो स्टार्ट राइटिंग। सो इमेज इन प्लेन मिरर, इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। फर्स्ट थिंग, इमेज क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज बोलो या हाइट बोलो, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स laterally inverted image, it forms lateral inverted image। अच्छा, lateral inverted का मीनिंग क्या है, लेफ्ट राइट रिवर्सल। दैट मीन्स देखो, ये है हमारा प्लेन मिरर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर। सो प्लेन मिरर क्या दिखा देगा, कैसे दिखा देगा, देखो ऐसे दिखा देगा। ओके, लेफ्ट राइट रिवर्सल और इट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। देन गिव हेडिंग टू नोट पॉइंट्स। पहला चीज़ क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट्स, दूसरा है ग्रेजिंग इंसिडेंट्स। एक है हमारा नॉर्मल इंसिडेंट्स, नॉर्मल इंसिडेंट्स, एंड दूसरा क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स। ये चीज़ क्या है देखो। सो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट्स, लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। सो एंगल आई कितना होगा, जीरो। सो एंगल आर भी कितना होना चाहिए, जीरो। एंगल आई इक्वल एंगल आर, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेसेस द पाथ। अगेन उसी पाथ पर डायरेक्शन रिवर्स करके चला जाएगा। तो इसमें डेल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज पाई माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई। देन ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो यहाँ पे ऐसे कि इंसिडेंट रे देखो स्ट्राइक कर रहा है। सो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल ड्रा करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल हो गया। सो एंगल आई कितना हुआ, एंगल आई, दिस इज नॉर्मल। सो एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल आर भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स कैसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा। यस, दैट मीन्स एंगल आर इन दिस केस क्या होगा, एंगल आर इज 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। सो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सो डेविएट तो नहीं हो रहा है ना, जीरो। सो कैसे होगा, पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, 90 डिग्री, दैट इज पाई माइनस पाई, दैट इज 0। यस, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर रोटेशन ऑफ मिरर। देखो, ये चीज़ को मैं आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा अपार्ट फ्रॉम द ओल्डेस्ट मेथड। देखो, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। सो इन रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या दिखा देगा, देखो, लेट अस थिंक दिस इज सपोज योर प्लेन मिरर। ये है हमारा प्लेन मिरर। यस, बस ये है हमारा प्लेन मिरर। सो अभी इंसिडेंट रे देखो, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। सो लाइट सपोज परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है। सो दिस इज इनिशियल इंसिडेंट रे, दैट मीन्स इट इज योर रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, मिरर को ना
थीटा एंगल रोटेट कर दूँगा, देखो थीटा एंगल क्लॉकवाइज सेंस पे रोटेट कर रहा हूँ। यस, सो आफ्टर रोटेशन ये हमारा प्लेन मिरर, कितना एंगल रोटेट हो गया, थीटा एंगल, कौन सा डायरेक्शन पे, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे थीटा एंगल रोटेट हो गया, ये एंगल थीटा। यस, सो इंसिडेंट रे को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इंसिडेंट रे क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, अभी हमारा जो पिंक कलर मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल कैसे होगा, देखो दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखो देखो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, सो ये नॉर्मल मीन्स इसको डॉटेड लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करना है। वेरी गुड, सो अभी ये हो गया हमारा नॉर्मल, किसके लिए, रोटेशन के बाद जहाँ पे मिरर है, दैट मीन्स पिंक कलर। यस, सो अभी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये तो इंसिडेंट रे ग्रीन कलर लाइन, एंड ये होगा तुम्हारा कितना, ये देखो ये था तुम्हारा प्रीवियस वाला नॉर्मल, ये है हमारा इनिशियल मिरर पोजीशन, दिस इज द इनिशियल नॉर्मल। अभी ये है तुम्हारा फाइनल मिरर पोजीशन, दिस इज द फाइनल नॉर्मल। सो थीटा एंगल मिरर रोटेट हो रहा है मीन्स उसके रेस्पेक्टिव नॉर्मल कितना एंगल रोटेट होगा, दैट ऑल्सो थीटा, बस। एंड फॉर दिस केस नाउ सी वन थिंग, इन दिस केस रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ये तुम्हारा वन पोजीशन, रोटेशन के बाद मैं पोजीशन को दे रहा हूँ 2, सो फॉर सेकेंड पोजीशन, यस रोटेशन के बाद, सो ये इंसिडेंट रे ग्रीन कलर लाइन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, सो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, यस दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, पक्का, यस। सो इधर देखो, सो एंगल आई इज एंगल आर, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा। सो एक चीज़ याद रखो, इसमें मैं तुमको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ये क्या है, दिस इज द इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, एंड अभी जो रेड कलर दिखा रहा हूँ देखो ये क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रोटेशन, दैट मीन्स ऐसे में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बिफोर रोटेशन, बिफोर रोटेशन, एंड हियर इज आवर रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रोटेशन, दैट मीन्स इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ओके, और आफ्टर रोटेशन ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज 2 थीटा, एंड कौन सा डायरेक्शन, दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, मिरर कौन सा डायरेक्शन पे टिल्ट हुआ था, मिरर भी थीटा एंगल रोटेट हुआ था ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो उसी हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट हुआ, 2 थीटा इन क्लॉकवाइज सेंस, बट हियर इंसिडेंट रे को हम लोग फिक्स रखे हैं। सो पॉइंट को क्या लिखना चाहिए इसमें, सो कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray rotates by an angle 2 theta, ये पॉइंट को याद रखो, दिस इज अन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स ये हमको पता चला इन दिस केस वी केम टू नो थीटा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मिरर। सो जितना एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। सो अभी दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करने से क्या पता चलेगा, देखो d/dt ऑफ थीटा रिफ्लेक्टेड दैट इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ 2 into theta mirror. Now we can say d theta by dt, that is omega, angular velocity. So omega reflected is equal to the constant है 2 into omega mirror, बस। सो एंगुलर वेलोसिटी किसका, मिरर का जितना भी है ना उसका 2 टाइम्स क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रहेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन पे। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा,
angular acceleration. So alpha reflected ray that is equal to 2 times of alpha mirror. तो इसको हम लोग ऐसे कंक्लूजन पे लिख पाएंगे. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो कितना आसान से हम लोग रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्या है देखो, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. सो फॉर नेक्स्ट अपडेट यू हैव टू वेट. यस, तो मैं अपलोड करूँगा, तुम लोग बस कंप्लीट करते चलो. So number of images formed by two plane mirrors inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta. अच्छा, इसके बाद फॉर्मूला हमको याद रखना है. देखो इसका मीनिंग क्या है. सपोज दीज आर टू मिरर्स एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है. सपोज थीटा. दिस इज योर मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2. सपोज दिस इज योर मिरर 2 एंड एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड 360 बाई थीटा. फाइंड 360 डिग्री बाई थीटा. इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट करो. इसका रिजल्ट तुमको दो तरीके से मिल सकता है. So if 360 by theta is even number, if you will find 360 by theta is even number, then remember, then number of images n is equal to 360 degree by theta minus 1. ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला. एंड if 360 by theta is odd number, then you have to think about two cases. पहला केस क्या है देखो, ऑड नंबर मिलने से दो चीज़ हमको याद रखना है. सो इफ 360 बाई थीटा इज ऑड नंबर, फर्स्ट थिंग सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट बाइसेक्टर. पहले देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट बाइसेक्टर, इसका मीनिंग ये था तुम्हारा दो मिरर ना. देखो देखो बस सो ये होगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर. ये एंगल बाइसेक्टर होने से ये होगा तुम्हारा थीटा बाई 2, ये होगा तुम्हारा थीटा बाई 2. बस. सो इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट है. सो ये इस कंडीशन दिखाई देगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1. यस, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकली प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली. एसिमेट्रिकल प्लेस होने से क्या होगा देखो. सो लेट दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. सो अभी ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है. सो इसमें नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 360 डिग्री बाई थीटा ओनली. यस, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड 360 बाई थीटा. इवन नंबर मिलने से बस वेरी इजी, एन इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1. ऑड नंबर मिलने से दो चीज़ को फोकस करेंगे. इसमें लैंग्वेज क्या लिखना है हमको, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है. बस. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. A very simple question. Question क्या है, question is find number of images. Find number of images if theta is equal to 90 degree. If theta is 90 degree, find the number of images. And also it is asking that and draw the ray diagram. ये रे डायग्राम ड्रा करने के बाद एक कंक्लूजन तुमको बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आएगा. देखो थीटा 90 डिग्री मीन्स टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और क्या, ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर. बस. ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट. सो पहले देखो थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर, दैट इज 90 डिग्री. सो फर्स्ट यू फाइंड 360 बाई थीटा,
दैट मीन्स 360 बाई कितना 90, दैट इज 4. सो 4 इज इवन नंबर, 4 इज आवर इवन नंबर. सो आज इट इज इवन नंबर, thus number of images equal to how much? 360 by theta minus 1, that is 4 minus 1, that is equal to 3. ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस. तो उसका डायग्राम कैसा होगा देखो, ये चीज़ एक अच्छा चीज़ है. देखो उसका डायग्राम क्या होगा, वी विल उसको ऑब्जर्व करो. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास. दीज आर द 2 मिरर्स. दीज आर आवर 2 मिरर्स. ओके, तो उसको छोटा कर देंगे, बस छोटा करने से ईजी होगा. देखो तो यहाँ पे येलो कलर इज आवर ऑब्जेक्ट. ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये येलो कलर इज आवर ऑब्जेक्ट. सो लेट दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज योर मिरर M2. ओके, अंडरस्टैंडिंग डायग्राम कर रहा हूँ. ओके, सो देखो ठीक से. सो इससे मान लो these 2 mirrors are placed, M1 lies in x axis and M2 lies in y axis. yes, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए. बस अभी देखो ओ से देखो ईच एंड एवरी डायरेक्शन पर क्या हो रहा है. वो इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पे रे एमिट कर रहा है वो. सो इसका इमेज वो M1 पे एक इमेज क्रिएट होगा या नहीं, ऑब्वियसली. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. बस लेट दिस इज द इमेज. सो रे डायग्राम क्या होगा देखो, इंसिडेंट रे, दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस इज अनदर इंसिडेंट रे. देन वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. यस, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से ऐसा लगेगा जैसे कि वो आई से निकल रहे हैं. सो परफेक्ट डायग्राम के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, परफेक्ट डायग्राम के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ बस, उधर समझ पाओगे. पहले देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, बाद में एक्सप्लेन करूँगा. अभी डायग्राम समझ में आ रहा है. दिस इज दीज आर 2 इंसिडेंट रेज, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज. एंड बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आई से निकल रहे हैं. वेरी गुड. देन क्या होगा, ये दोनों देखो M2 पे इंसिडेंट हो रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज. फिर से सुनो, M1 मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रेज ना वो किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, M2 मिरर के ऊपर. सो इंसिडेंट रेज फॉर दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ M1 बिहेव्स एज द इंसिडेंट रेज फॉर M2. अब ये लोग फिर से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसा लगेगा बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से जैसे कि वो यहीं से निकल रहे हैं. दैट मीन्स का इमेज इधर भी दिखाई देगा. पहले देखो, हाँ. सो डायग्राम को सही तरीके से करने के लिए मैं थोड़ा ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ. कौन सा ट्रिक देखो, ऐसे मान लो बस. पहले मुझे ड्रॉ करने दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा. yes, so these are the reflected rays. अच्छा सुनो पहले. सो यहाँ पे these are the incident rays, that means these are the reflected rays of mirror M1 but incident rays for mirror M2. फिर वहीं पे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि वो ये पॉइंट से निकल रहे हैं. सो यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्म होगा. दैट मीन्स इंसिडेंट रेज एंड दिस आर द रिफ्लेक्टेड रेज. बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे एक इमेज दिखाई देगा. और एक चीज़, ओ क्या है हमारा, ओ इज आवर ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट एमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. सो देखो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे 2 रेज ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं. ऐसे भी हो सकता है 2 रे ऐसे आकर भी इंसिडेंट हो पाएंगे. बस ओ पॉइंट से निकल कर डायरेक्टली 2 इंसिडेंट रेज आर इंसिडेंटिंग अपॉन मिरर M2. सो यहाँ पे देखो ऐसे सपोज इंसिडेंट हो रहे हैं. दीज आर 2 व्हाट
इंसिडेंट रेज। देन उनका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यहीं पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल इमेज डिस्टेंस, तो यहीं से मैं रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ कर रहा हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन ड्रॉ इट इन ए वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर मैनर। हो गया, देखो दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज एंड दिस इज वन ऑफ द इमेज। सो पहला इमेज क्या है, कितना इमेज बोल रहे थे हम लोग, 3 ना, बस 3 ठो इमेज फॉर्म हो गया, 3 ठो इमेज फॉर्म हो गया। दिस इज योर I1, दिस इमेज इज योर I2 एंड दिस इमेज इज I3। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो यू हैव टू कीप योर पेशेंस, ओके, पेशेंस के साथ सब कुछ कंप्लीट करना चाहिए हमको। वेट, विदाउट पेशेंस यू कैंट कंप्लीट एनीथिंग। यस, सो देखो जो 3 ठो इमेज दिखाई दे रहा है, पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ मैं ये बोलने वाला हूँ, ओ से जो इंसिडेंट रह रहा है ना, देखो ये दो, बस ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है, I1 एंड I2। बट I3 का प्रोसेस क्या है, I3 का प्रोसेस, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ M1 बिहेव्स एज इंसिडेंट रेज फॉर M2, रिफ्लेक्टेड रेज फॉर M1 बिहेव्स एज इंसिडेंट रेज फॉर M2। ये दोनों फिर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये I2 फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स I2 का इंटेंसिटी क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। I1 एंड I3 का इंटेंसिटी क्या है, I3 का इंटेंसिटी थोड़ा लेस होगा, किससे कंपेरिजन से, I1 और I2। पहला चीज़ देखो, ऑब्जेक्ट कौन सा क्वाड्रेंट पे है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। बस, तो याद रखो I1 एंड I2 both are having same intensity, both are having same intensity, but intensity of I3 is less than I1 and I2। समझ पा रहे हो मेरे बोलने का मतलब क्या है, ये जो I1 and I2 ये दोनों इमेज कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वो से इंसिडेंट रेज आ रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद फॉर्म हो गया। लेकिन I3 का फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ M1 बिहेव्स एज इंसिडेंट रेज फॉर M2 एंड रिफ्लेक्शन ऑफ M2 के बाद, रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 के बाद वो I3 फॉर्म हो रहा है। यस, दैट मीन्स I3 इज विथ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट। ओके, आई होप we have completed this interesting portion in a very fruitful manner. So number of images formed by two plane mirrors inclined at an angle theta. So with this we have completed our lecture number 1. So try to complete this lecture in a very systematic manner. Yes, after that stay tuned for next update for the second lecture. So one by one we will discuss of two simple microscope and telescope. Simple microscope, optical instruments, that is simple microscope, compound microscope and telescope. So wait up to that lecture. So try to like, share and subscribe this channel and share this video to your friends actually, so that it will be beneficial for them. So thank you, have a nice day.